Served the University of Roorkee IIT from 1979 to 2018 and retired as a senior professor followed by emeritus fellow. Presently, he is honorary professor and advisor at MIT University, Noida. He has made many significant and original contributions in several areas of nuclear physics, having published more than 150 papers and edited, co-edited, authored several books, including 2 prestigious papers in review of modern physics. I invite Dr. JAIN to deliver lecture on a book which is written by his father only, Vर्ण जाति और धर्म, and the author is Pandit Phulchand Jain Shastri. A huge round of applause. उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित अनेक वरिष्ठ विद्वान, हमारे मित्रगण यहाँ पर कई हैं, और श्री प्रवीण जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेधावी जी, जिनके सौजन्य से आज मुझे यहाँ आप सबके सम्मुख कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन के अनेक कार्य बड़े जल्दी से पूर्ण कर लिए हैं और अब आप उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम अभी तक नहीं आ पाए। इसलिए बड़ा अच्छा समय है कि आप एक नए अध्याय में प्रवेश करें और जिसका आज मेधावी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया। मैं बेसिकली एक फिजिसिस्ट हूँ and I have spoken, probably delivered hundreds of lectures and seminars and classes, तो पता नहीं कितनी की होंगी। I might have taught dozens of courses at Roorkee and other places. I have been professor at other universities also. So this topic is certainly not physics, and it is new to me and not new also. Actually, it is both, because I have been observing this work since my childhood. मेरे पिता कार्य करते रहते थे और मैं उनका कभी कभी उनकी लाइब्रेरी में बैठ जाया करता था। वहाँ जो भी पढ़ने लायक पुस्तकें होती थी उनको सब पढ़ लेता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं देखता रहता था कौन सी पुस्तक मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अधिकतर पुस्तकें बहुत मेरे लेवल से ऊपर होती थी और मैं उनके साथ बैठकर प्रूफ रीडिंग करवाता था। तो ये मेरा एक काम होता था, उनके साथ बैठना। उस समय मैनुअल प्रेस होते थे और बड़े बड़े प्रूफ आते थे और उनमें करेक्शन करना मेरे ख्याल से जब मैं 15 साल का था तभी मैं करेक्शन करना सीख गया था, और क्या मार्क्स लगाए जाने हैं, कैसे किया जाना है, और हर प्रूफ का 3 बार करेक्शन होता था। तो उस क्रम में मैंने बहुत सारी चीजें स्वतः सीख ली, जैसे कि संस्कृत पढ़ना, प्राकृत पढ़ना। मेरे पिता संस्कृत प्राकृत के बड़े अद्भुत विद्वान थे और दिन भर उनका कार्य यही चलता रहता था, लिखना और पढ़ना। तो इससे कुछ थोड़ा बहुत मेरे अंदर आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी ये रुचि कभी नहीं हुई कि मैं उस कार्य को करने लूँ। To be very frank, I never wanted to do that kind of work. I was always interested in science, and physics was my pet subject. I was very good in mathematics, and I always scored 100% marks in mathematics, and that was natural to me. So I had no tuition, no coaching, nothing. At that time there was nothing was there. These are all new things, and whatever I wanted, I did. With this brief introduction, I should give you a brief about my father also, because as I told you, he was a very unique scholar in the sense that I know personally most of the scholars, senior scholars as well as present scholars in this field. And I also know that they were all scared of him because they could not stand him actually. That was the situation. And he never did any job, regular job. He was employed once by Mohan Malvi ji in Banaras University
He taught there for a couple of years, then he left. So he always remained a freelancer. And he has done the original translations from original text on Prakrit, 16 volumes of Shatkhandagam, 12 volumes of Mahadhavla, Jayadhavla from Mathura, 14 volumes. So in this way, around 40 volumes are there. The huge work that he did in his life, which is impossible for a single person to do. You cannot imagine. And all this he did when there was no facilities. In fact, when I was a child, I didn't have electricity in my home. And we never cared. I don't think we ever bothered. We don't have electricity, what to do, what not to do. We were quite at peace and happy all the time. So this always propelled me to work in whatever field I was, and I imbibed some of these things. And it so happened that when he became very old and he requested me to look after some of his works, manage them and all this. So I started looking at these things. And he had established an institute in Banaras. Here, I even a part of it. It's a very deep book. And when I started reading it at the insistence of Medhavi, she asked me, you should speak on this. And I had no time because I was busy in other things. So I spent about last 20 days on this book, to be honest. And I could read first 60 pages, 60 or 70 pages. And then I glanced through the rest of the book also. I was aware of some of the history. So it's very important that you know this history and the times. Because the topic that this book deals with, it still bothers the whole country. It remains a very burning topic actually, and a divisive topic in many ways, because we know our society has always been divided on the basis of caste. It is a caste-driven society. And it has kept things in tatters for a long time. And how Jains got into it, why Jains also began to accept this society-ridden system, this caste-ridden system, is very difficult to understand at first glance. When we achieved independence in 1947, immediately after that, there was Bombay, at that time it was called Bombay, and Bombay Legislative Council, it passed an act which was called Harijan Mandir Pravesh Act. Means Harijan was the name given by Mahatma Gandhi to the scheduled caste and scheduled tribe people, and they were not allowed to enter the temples until then. So a bill was passed, and that kind of, and this act included all temples, including Jain temples. Because Jains were treated as part of Hindu society. And in fact, we are part of Hindu society as a fact, because Jains have not come from abroad. They have all been grown up. Everything is grown here itself. So, this kind of led to a tussle, because many Jains who were orthodox, Ruಢिवादी Jain, they were not supportive of this. They said, oh, हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? ये तो हमारा तो हिंदू मंदिर है, हमारा तो हिंदू मंदिर नहीं है, हमारा तो जैन मंदिर है। और हमारे एक बहुत बड़े आचार्य शांति सागर जी, जो कि
जिन्होंने मुनि परंपरा जो उस समय तक समाप्त हो गई थी उसको उन्होंने रिवाइव किया। उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया था और उस समय वो सबसे बड़े आचार्य थे जैन, दिगंबर जैन। उन्होंने इसके विरोध में, एक्ट के विरोध में एक उपवास शुरू कर दिया। उससे काफी सारे जैन उनके साथ जुड़ गए और आंदोलन शुरू हो गया और ये काफी दिनों तक चला। मेरे पिताजी उस समय भारतीय ज्ञानपीठ से जुड़े हुए थे और भारतीय ज्ञानपीठ बनारस में स्थापित थी, वहीं से स्थापना हुई थी इसकी। इसका प्रेस वहीं पर था और ये उसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका ज्ञानोदय के संपादक थे 49-50 के आसपास। ये उसमें संपादकीय लिखते थे और उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश बिल के समर्थन में कई संपादकीय लिखे, कई लेख लिखे और इन्होंने कई जगह उसके समर्थन में भाषण भी दिए। इनका कहना था कि हम किस आधार पर मना कर रहे हैं मंदिर में आना है, क्या आधार है? तो फिर जैन किस बात के? जैन जो धर्म है वो तो एक डेमोक्रेटिक धर्म है, ये सबके लिए है। हमारे जो आगम है उसमें तो कहीं लिखा नहीं है। तो ये बाद में जो कैसे हमारे शास्त्रों में आ गई ये चीज, इस बात को लेकर के साहू शांति प्रसाद जी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के संस्थापक हैं, थे, मतलब तो वो नहीं है, स्वर्गीय हो गए, और उनकी पत्नी श्रीमती रमा जैन, ये उस समय जैन समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और बहुत ही सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे। और उनको ये देख करके बड़ा कष्ट होता था। उन्होंने मेरे पिताजी से रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि पंडित जी आप इस पर कुछ लिखिए, एक अच्छी पुस्तक लिखिए जिससे कि ये इस विषय पर प्रकाश पड़े। तो उनके आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया और भी कई विद्वानों ने इनसे कहा कि आप लिख सकते हो, आप लिखो। तब उन्होंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की और ये पुस्तक मेरे ख्याल से सन 57-58 में तैयार हो गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ से ये छप भी गई थी, लेकिन जैसा कि इसमें उन्होंने लिखा है, इसको प्रकाश में पब्लिक में नहीं लाया गया। कई वर्षों तक उसे रोक रखा गया और सन 63 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। क्यों रोक रखा गया ये अलग क्या बातें हुई होंगी, कुछ जो भी कारण रहे हों मैं नहीं जानता, उस विषय में कुछ स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है। लेकिन सन 1963 the book was finally brought into the public। और सभी जानते थे कि पंडित फूलचंद शास्त्री तो बड़े हरिजन मंदिर प्रवेश के समर्थक हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह के कई आंदोलन चलाए थे। जैनों में भी ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको जैन उससे बाहर कर दिया गया था, ये लस्सा कम्युनिटी होती थी। इन्होंने उनको भी शामिल करने का, उनको मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था। स्वतंत्रता संग्राम में तो ये जेल जा ही चुके थे। तो ये एक तरह से इनको सुधारवादी या प्रोग्रेसिव ग्रुप का लीडर माना जाता था। ये एक समस्या थी कि ये ऐसे कई संतों से भी जुड़े थे जो हरिजन मंदिर प्रवेश का विरोध करते थे, लेकिन ये उसका समर्थन करते थे। तो इस पुस्तक को उन्होंने लिखने में 2-3 वर्ष लगाए और जहां तक जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये समझा कि इसको लिखने में उन्होंने कम से कम दर्जनों ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, क्योंकि उन्होंने इसमें मनुस्मृति से लेकर के सभी वेदों का, उपनिषदों का उद्धरण तो दिया ही है, सभी प्रमुख जैन ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं और सब प्रमाण, कोई भी बात लिखते हैं तो उसका वो एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक में ये सिद्ध किया है एक तरह से, ये जो जाति व्यवस्था
हमारे ग्रंथों में आई, जैन शास्त्रों में, वो उत्तर काल में आई। उत्तर काल का मतलब करीब 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद। हमारे जो मूल आगम ग्रंथ हैं, जैसे कि षटखंड आगम है, कषाय पाहुड़ है, जिनको मेरे पिताजी जिसके बड़े अच्छे विद्वान माने जाते रहे, उनमें ये कहीं नहीं है। और बाद में खास करके जब आचार्य जिनसे ने महापुराण की रचना की, तो समाज के बीच में रहते हुए जब आप किसी समाज में रहते हैं तो उसकी बहुत सी चीजें आपके अंदर भी आने लगती हैं, आप उनको अडॉप्ट करने लगते हैं। तो उन्होंने अपने महापुराण में ऋषभदेव के पुत्र भरत के मुख से ये सब बातें कहलाई कि वर्ण व्यवस्था ऐसी होगी, ये रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ये इस तरह के नियम होंगे इस जाति के लिए, वो इससे शादी कर सकता है, वो इससे विवाह नहीं कर सकता, वो इससे ये कर सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने उसमें पहली बार देखी गई, और उस चीज को बाद के कई आचार्यों ने उसको प्रोपगेट भी किया। इस विषय में एक बड़ी अच्छी बात है जो कि लिखते हैं कि साधारणतः यह कहा जाता है कि अपने पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य या पंडित ने जो कुछ भी लिखा है उसे प्रमाण मानकर चलना चाहिए। धर्मशास्त्रों में यही होता है कि वही किसी प्रामाणिक बड़े आचार्य ने, पंडित ने क्या लिखा, किसी हद तक यह उचित भी है, किंतु इसमें एक ही आपत्ति है। यहाँ पर एक आपत्ति उठाते हैं, वो यह है कि सब आचार्य न तो गणधर होते हैं, न प्रत्येक बुद्ध होते हैं, न शुद्ध केवली होते हैं, और न अभिन्न दशपूर्वी होते हैं। इसलिए कदाचित अपनी अल्पज्ञता और देश काल परिस्थिति के कारण वे अन्यथा प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन पुट थिंग्स which are not against, which are kind of against the earlier agams, earlier शास्त्र। सम्यक दृष्टि को इसका बोध होने पर सूत्रानुसारी होने से यह ऐसे वचन को आगम बाह्य मानकर त्याग देता है। धर्म क्या है, इसके बारे में जैनों में एक सूत्र आता है, वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव धर्म है तो इससे क्या अर्थ हुआ, हमारा धर्म क्या है? क्योंकि जैन जितना केवल जैन ही नहीं, सारे वैदिक और बौद्ध धर्म भी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। तो जैन कहते हैं कि हम क्या हैं, हम तो आत्मा हैं। तो जब हम आत्मा है तो आत्मा का धर्म क्या है, वो हमारा धर्म है। हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, वही हमारा धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव हर चीज को सम्यक रूप से जानना है, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन को अगर मिला दें तो यही धर्म है। यह धर्म का यही सार है मुख्य रूप से। और इसमें कोई, जब आप जीव आत्मा की, और जैन सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं करते, जीव आत्मा की बात करते हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जो हिंदू धर्म के हिसाब से हम कर्म तो हर तरह के करते हैं, पर अगर कोई हमसे गलती हो या हम जानबूझ के कुछ करें तो पश्चाताप से वो कर्म फल थोड़ा खत्म हो जाता है। जबकि जैन धर्म में ये मानते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, पश्चाताप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ भी जो यहाँ तक जो साधु हैं, जैसे हमारे साधु हैं, वो प्रतिदिन दिन के अंत में एक प्रतिक्रमण करते हैं और वो ये रिव्यू करते हैं कि उनसे कोई क्या गलती हुई है दिन में और उसको कैसे परिमार्जित करेंगे। तो जब आप ये करते हैं, देख सब भावों का खेल है, जब आप ये करते हैं तो आपके वो जो भाव हैं वो वीकन होने लगते हैं, उनमें एक हीनता आती है, कमजोरी आती है, तो उसका फल भी उसी हिसाब से वीकन होगा ही। तो
डिपेंड करता है किस तरह के कर्म के विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें क्षणिक होती हैं, कुछ मतलब ये ऐसा नहीं है कि एकदम से पश्चाताप तो एक तरीका है ही उसको परिमार्जित करने का। तो जैन में ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया गया है। सर मेरे भाव में जाति जात नहीं है, मतलब मैं जातियों में नहीं डिफरेंस मान रही, बट मेरे घर में अगर है तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए समवेयर एक डिस्टेंस बनाती हूँ या कहती हूँ कि नहीं तुम मुझे छो मत, तो मेरे भाव भी खराब होंगे, मतलब दोष मुझे भी लगेगा, या मेरी वो इंटेंशन कि मैं अपने घर में बैलेंस करने के लिए नहीं कर रही हूँ, तो वो उसका भाव दोष किसको लगेगा? वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू आंसर। निश्चित रूप से आप एक कोशिश कर सकती हैं कि भाई ठीक करो इसको, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आपकी नहीं चल रही है तो आप विवश है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी कोशिश की और कोशिश करते रहिए, और क्या किया जा सकता है। थैंक यू। उसमें यही था कि जो ब्लैक्स हैं उनको वो लोग एज अ सर्वेंट रख लेते हैं, एज अ नैनी रख लेते हैं, बट ब्लैक्स उनके टॉयलेट्स यूज नहीं कर सकते, उनके बर्तनों में खाना नहीं खा सकते। तो बेसिकली जो इंडिया में बहुत नॉर्मलाइज करते हैं कि दिस इज द वे हाउ थिंग्स वर्क। तो मैंने रिसेंटली अपने आप को समझाई थी, मैंने कहा मैं भी ये काम कर रही हूँ, मैंने कौन सा कुछ अलग किया है, क्योंकि खाने के बर्तन अलग हैं और टॉयलेट भी अलग है सबके। तो फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने आप को समझाया कि मेरी इंटेंट क्या है, मेरे भाव की अगर मैं बात करूँ तो मेरा भाव ये नहीं है कि वो छोटी जाति का है कोई, मेरा भाव ये रहता है कि हाइजीन लेवल उनका कम है, क्योंकि वो उतना हाइजीनिक नहीं हो सकते। सिर्फ ये मेरे अंदर, तो मैंने अपने आप को समझाया, अगर मैंने सही करके नहीं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया, बट अपने मन को समझाया कि मेरी इंटेंट ये था। इंटेंशन के ऊपर तो जैन धर्म में भी लिखा है, जैसे अगर आज किसान को खेती करेगा तो उसमें जीव हत्या होगी, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जीव हत्या होती है, बट हमारी इंटेंशन नहीं है कि किसी को हमें दुख पहुंचाना है या किसी को हानि पहुंचानी है, तो ये इंटेंशन तो हर जगह मैटर करती है। जैन धर्म भी इस बात को मानता है। हमारे यहाँ हिंसा के भी कई अहिंसा के वो किए गए हैं, प्रकार किए गए हैं। कई उपाध्याय जी या कोई बात बता सकते हैं जी कि उसमें गृहस्थ की हिंसा है, साधु की हिंसा है, सबका लेवल अलग अलग है। अब जैसे वॉरियर है, अब कोई सैनिक है, तो उसकी अहिंसा का लेवल अलग होगा, इंटेंशन नहीं है। Any other question? But the fundamental question still remains. Every religion says that you have to go through whatever you have done. Karmi apo apni ke nere ke dur. Today or tomorrow you have to go through whatever you have done. So there is nothing escaping from it. Then if that be so, then what is the role of the saints to mitigate the effect of karma on mankind, so that ultimate aim of the soul is what? To reach its creator, to join that ocean, whatever name you give it to it. Then how do the saints help you to achieve that? To throw a little more light, I would say what Gita says about this is, what is explained in the Gita is that nishkam karma. So many other religions call it the karta bhav. कि you do a thing without being the karta of it, you do it in the name of him. You say whatever he does, that is what you are, just the nimitt, you are just the source of doing it. Otherwise, kare karabe aur hai, paltu shor. So, if that is the thing, my fundamental question is, how do the saints help in mitigate the effect of karma? I said earlier also that when you go to a temple or you go to a saint and you try to, you have some issues and you request him to provide some solace or some solution. Now, different saints will react in different ways. We have all varieties of saints in this country. But what the
Karma says. You have to, as you said, you have to sow what you have sown. You have to reap what you have sown. That is true. But if you do, as Madam just asked, is there any way of repenting? कुछ प्रायश्चित किया जा सकता है क्या? प्रायश्चित किया जा सकता है, उससे कर्म पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा, वो उसके साइकिल से आप जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन उसका जो लॉजिकल एक सीक्वेंस है उसमें तो आप उसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका एकदम फल नहीं होगा, फल तो होगा ही होगा। ये हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा इफेक्ट आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट ना करे, या आप किसी तरह से उससे कम प्रभावित हों, ये हो सकता है। और उसमें वो हेल्प कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करो। तो इसमें जैन धर्म का जो कर्म सिद्धांत है वो कम आपको लीवे देता है, बहुत कम लीवे देता है, मतलब इधर उधर जाने की ज़्यादा इजाजत नहीं देता वो कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो वैदिकों में जो कर्म सिद्धांत मैंने देखा है, पढ़ा है, इसमें जो एक बड़ी अच्छी पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप देखना चाहें, एक स्वामी राम हुए हैं, स्वामी राम कई हुए हैं, स्वामी राम हिमालय के। तो स्वामी राम के एक शिष्य हैं पंडित राजमणि त्रिगुणायत, उनकी एक पुस्तक है इस विषय पर, बहुत बढ़िया पुस्तक है। आप उस पुस्तक को देखिएगा, मेरे ख्याल से पुस्तक का टाइटल है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, समथिंग लाइक दैट, बिटवीन लाइफ एंड। आप नेट पे देखेंगे तुरंत मिल जाएगी उनकी, और बहुत पॉपुलर, मतलब बेस्ट सेलिंग बुक है उनकी ये, और बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसमें वो कई एग्जाम्पल से, पौराणिक कथाओं से समझाते हैं कि कैसे वो कर्म वर्क कर रहा है। तो उसमें वो इन चीजों को टच करते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे ना, उसको वो टच करते हैं कि वे क्या कर सकते हैं इसमें। What is the name of the author you said? पंडित राजमणि त्रिगुणायत, a very good writer, very senior person now. I don't know whether he is still there or not. Very old person. So I just wanted to ask one question. In Jain Dharma, why is honey considered bad? Because in Rig Veda they say honey is nectar, is next best thing to all the things. So what's the logic? And Rig Veda and Jain, they're all similar, right? There are there are many things about what to eat, what not to eat. For example, many Jains consider eating potato a very bad thing. Something should not be eaten. Now potato came into this country in 16th century probably or somewhere. Before that there was no potato here. So our old scriptures don't have any mention of potatoes. And they forbid you from taking kandapur because it is under the ground and therefore they say it contains more jeev. So when you eat it, it will have more jeev inside there. That is one reason given, which is okay. Whatever is the understanding of that time, according to that, they have done that. About honey, they say when you take out honey, you kill a lot of bees. They lose their home, they lose their life. This is one reason, because it involves a lot of violence. And then they also argue that the honey that you take, how it is made. So they collect in their mouth and they put it there. So it is not a very pure thing. There are many arguments are there.
See, all these things are completely based on your individual logic and thinking and what emotions it arouses in you. See, we will not kill, it is forbidden for us to kill even a mosquito. But can you live with mosquitoes nowadays? You cannot live with mosquitoes nowadays. We will all fall sick. So we try to protect ourselves in many ways. But the level of violence, how much you can take, that has to be limited. As much limited as you can in your life. And the level of limitation increases with the level of vows that you take for people who are into family life. There are different levels prescribed, how you can take them and how you practice them. So there's a different, whole set of program is there. सबसे बड़ा आपके अंदर क्या आ रहा है? अहिंसा दो तरह के होते हैं, एक अर्थ हिंसा, एक अनर्थ हिंसा। जो अर्थ है जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना या फूल ही तोड़ना, अगर हम फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो अर्थ है, और अगर ऐसे ही तोड़े और कुचले ये करा वो करा तो वो अनर्थ हिंसा है, वो नहीं करनी चाहिए। अनर्थ हिंसा अगर किसी काम के लिए कर रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो वो तो होगी ही होगी। जैसे खाना बनाना है, गैस जला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और एक फालतू में मतलब आग को जलाना, उसमें लाखों जीवों की हिंसा होना, वो अनर्थ है, वो नहीं होना चाहिए। माइंडलेसनेस हो गया। थॉटफुलनेस होनी चाहिए आपके किसी भी काम में। कोई भी काम करते हैं अगर किसी अच्छी इच्छा को लेकर करते हैं तो वो होनी चाहिए, और नहीं तो कोई बेकार भी कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। यही कहना है। Thank you so much, sir, for a wonderful lecture.